So, hello everyone. A lot of you were asking me to make a video on EPQ, the practicalizing personality inventory. So here it is. We in this video we're going to cover the scoring of EPQ interpretation and how to make the practical file. So starting with the scoring, this is the questionnaire that has questions. It is a scoring key, and I'll also show you the file. So to score, first you need to get your questionnaire filled. Identify a subject and then get the questionnaire filled by the subject. It has 90 questions. It should not take them more than 10 to 15 minutes, or at max 20-25 minutes to fill this. You can also give them this questionnaire, explain the instructions, how do they have to fill it. They have to read the question and choose from the yes or no responses, whichever they feel is the right according to the question. For example, the first question is, do you have many different hobbies? If they feel that they have many different hobbies like my subject, so they will put an answer, tick on yes. If they feel they don't, then they will put a mark on no. And similarly, they have to answer all these questions. Once they have answered the question, then you will take it up for scoring. Now how is the scoring done? So यहाँ देखो, there are different tables, as you can see, and these tables are for separate there are 4 different domains. The first table is for psychoticism, second table is for neuroticism, third is for extroversion, fourth is for lie scale. Right? So ideally you should at first score the lie, you should get the lie score so that you can accept or reject the score. Because as per this test, if your subject is girl and she has scored a lie score of 7 or more, if it exceeds the limit of 8, then you should reject the scores because the subject has lied a lot in the test, so you will reject it. If the raw score is the score that is on the lie scale. If the raw score is 7 for males, then you should reject the score. You will do the scoring. You will ask the subject to fill it again and do the scoring again. So what is the point of having lie score? Lie score shows that the subject has lied a lot on the test, so the results are not accurate. You will need to take the test again. You will need to do the scoring again. Okay. So once you have the score for lie scale, then you can move on to psychoticism, neuroticism, extroversion. And the method is same for all the tables. I'll show you how you have to calculate the scores. Wait. See. So first we are doing lie scale. My subject was a female. So we need to have the lie scale less than 8 to accept or reject it. I don't know what the score is going to be. So we're going to move ahead anyways. Ignore this line because this is just the serial number. You have to see this item number. So the second column. Item number means the question number. So for question number 4, the answer should be no. If according to the table. If the answer is no, we will give them 1 marks. If the answer is opposite to what is written in the table, we will give them 0 marks, right? So यहाँ पे देखो, for question number 4, this is question number 4, and for question number 4 the subject has marked no response, so we are giving him 1 marks. Then question number 8, no. Question number 8 is here and the subject has marked yes, which is opposite to the table, so it should be 0. Then question number 13, it's 13 यहाँ पे है. For 13 they need to mark no and the subject has marked yes, so 0. Then question number 16, so for question number 16 they have no but यहाँ पे yes है, so 0. Then question 20 उनके अकॉर्डिंग दे शुड बी येस एंड येस मार्क किया हुआ है. क्वेश्चन 24 इज ऑन द नेक्स्ट पेज. ठीक है. सो नेक्स्ट पेज के लिए हम चले जाएंगे नो. यहाँ पे येस है, सो 0. तो एज यू मूव फॉरवर्ड, तुमने पहला पेज जब कंप्लीट कर लिया ना, तो उसका टोटल स्कोर करके यहाँ लाई वाले टेबल में, एल वाले टेबल में लिख दो. सो यहाँ पे कितना स्कोर आया है? 1 + 0 + 0 + 0 + 1. यहाँ 2 हो गया, राइट. अब नेक्स्ट पे जाएंगे हम. फिर नेक्स्ट में देखो, पहले सारे 24 पे नो है तो 0. देन 28 शुड बी नो, तो 28 पे यहाँ पे इन्होंने नो किया है 1, राइट. नो का नो है तो 1. देन 35 पे इसने क्या किया है? येस, और उसको क्या चाहिए था? येस, सो 1. 39 नो, 39 0. 44 नो, 44 यहाँ देखो, 44 इज नो, सो 1 मार्क्स. देन 48 ये रहा. 48 पे इट शुड बी नो एंड द सब्जेक्ट हैज डन नो, मार्क नो, सो यस, 1 मार्क्स मिला इसको. देन 51 इज हियर. 51 पे नो होना चाहिए था एंड 51 पे यस है, सो 0. देन 53 नहीं है. सो इस पेज का हो गया. इस पेज पे टोटल कितना है? 1 2 3 एंड 4. सो इस पेज पे आ गया 4. मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका लाई स्कोर ऊपर चला जाएगा, बट लेट्स सी. सो नेक्स्ट इज 51 हो गया. 56 पे यस, यहाँ पे यस, सो 1. 59 पे नो, 1. 63 पे नो, 0. 69 पे यस, यहाँ पे नो है, सो सॉरी 69 पे शुड बी नो, यहाँ पे यस है, सो शी विल गेट 0. देन 63 sorry 73 is no, 0. 78 is no, yes, 0. 81 पे यहाँ पे नो, इसने यस किया 0. 82 पे 83 नहीं है. 85 and 89. 85 should be no, so 0. and 89 should be yes, so 0. so लास्ट वाले में it's 0 है ना. पेज नंबर 4 पे 0 है. पेज नंबर 3 पे देखो कितना है. टोटल इज 2. सो अब ये जो तुम्हारा लाई स्कोर आया ना, फर्स्ट पेज पे 2, देन 4 एंड देन 2, सो वो यहाँ लिख दो 2 4 एंड 2. सो व्हाट इज द टोटल लाई स्कोर? 4 5 6 7 8. सी, एक पॉइंट से रह गया, वरना वी हैव टू रिजेक्ट इट. सो अब हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज द रॉ स्कोर इज 8. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्कोर द अदर
डोमेन्स साइकोटिसिज्म करते हैं। सेम मेथड यू हैव टू यूज जैसे हमने अभी किया है ना। ये फर्स्ट रो हटा दो, दिस इज द सीरियल नंबर, इससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट इग्नोर दिस। हमें क्या देखना है, हमें देखना है आइटम नंबर। आइटम नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर एंड क्वेश्चन नंबर टू के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नो एंड द सब्जेक्ट इज मार्क्ड यस, तो उसको 0 मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए उसको क्या मिलना चाहिए, नो उसने करना था और इसने भी नो किया है, सो शी विल गेट 1। देन 9 9 is here and 9 में नो करना था, उसने yes किया है, so 0। then 11 and 18 both should be no। 11 and 18, 11 का उसने नो किया है 1, 18 का उसने yes किया है 0। and after 18 22, 22 should be yes, 22 is yes, so 1। साइकोटिसिज्म का स्कोर क्या हो गया 1 2 3। सो यहाँ पे P वाले कॉलम में विच इज साइकोटिसिज्म हमने 3 लिख दिया एंड हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखो 22 हो गया था, 26 yes, 26 30 33 yes होने चाहिए। सो 26 30 एंड 33 हमारे क्या है, yes है, ये भी yes है और ये भी ये नो है, सो शी विल गेट 0। देन 37 43 46, 37 43 एंड 46 होने चाहिए yes, तो 37 इज yes, 43 इज no एंड 46 इज ऑल्सो नो, 0 हो गया। देन 49 शुड बी yes, तो ये हमारा हो गया 1। देन 53 इज नो, तो ये हमारा हो गया 0। ना तो टोटल ऑन द सेकंड पेज फॉर साइकोटिसिज्म इज 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। राइट, नाउ कम टू द थर्ड पेज। अब आगे देखो 54 से, 54 तो नहीं है, 53 हो गया था हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट इज 57, सो 57 के लिए द आंसर शुड बी नो और द सब्जेक्ट इज मार्क्ड यस, सो यहाँ पे 0 हो गया। देन 61 के लिए भी नो, 61 के लिए भी इसने यस किया है, सो 0। अब से यहाँ पे ना तुम्हें ये नहीं देखना कि ओ शिट मेरा सब्जेक्ट सारे गलत मार्क कर रहा है, यहाँ पे गलत सही कुछ भी नहीं है। अगर वो यस कर रहा है और उसमें यस लिखा है तो उसकी पर्सनालिटी टाइप दूसरी होगी, नो करेगा तो पर्सनालिटी टाइप दूसरी होगी, तो इट इज जस्ट डिफरेंस इन पर्सनालिटी। यहाँ पे आंसर सही गलत नहीं है। एंड दिस यू हैव टू टेल टू द सब्जेक्ट ऑल्सो, जब वो तुम उसको क्वेश्चनर फिल करने के लिए दे रहे हो ना, तो यू हैव टू मेंशन कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर, यू जस्ट हैव टू मार्क द ऑप्शन जो आपको सबसे ज्यादा सही लगता है या रिलेटेबल लगता है, बिकॉज इट इज वेरी सब्जेक्टिव। नाउ 65 पे आ जाओ, यस होना चाहिए, इसने यस किया है 1। 71 पे 67 पे आ जाओ, 67 पे इसने यस होना चाहिए था और इसने भी यस किया है, सो 1। देन 71 नो, 71 नो, 74 yes, 74 yes, 76 yes, 76 yes, 79 yes, 79 no, 83 yes, 83 yes। अब टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 6, सो सेकंड पेज का हमारा टोटल हो गया 6, सॉरी थर्ड पेज का। नाउ कम टू द लास्ट पेज, इसमें देखो 87 एंड 90 दो ही हैं, सो 87 सॉरी 87 yes 1 एंड 90 no 1। सो लास्ट पेज का टोटल हो गया, लास्ट पेज का हो गया 2। इससे पहले वाले का था 6, उससे पहले वाले का था 4 और उससे पहले वाले का था 3, तो ये हम यहाँ लिख देंगे 4 एंड 3। अब इसको टोटल करके लिख लो, 6 + 4 10 13 14 15, ओ बहुत ज़्यादा स्कोर आया है। ठीक है, अब इसको ना एक बार मैं इंटरप्रेट करना सिखा देती हूँ, फिर बाकी दोनों भी कर देंगे, बिकॉज अदरवाइज द वीडियो विल बिकम वेरी लेंदी। तो यहाँ देखो हमारा टोटल रॉ स्कोर क्या है, 15 आया ना। नाउ कम टू द इंटरप्रिटेशन टेबल, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ तो तुम इसी को रहने दो, इधर आ जाओ। कम टू द इंटरप्रिटेशन टेबल। अच्छा, इसकी मैनुअल, इफ यू डोंट हैव द मैनुअल ना, तो जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल शेयर द लिंक टू द मैनुअल आल्सो, बिकॉज इसके अंदर क्वेश्चनर एंड मैनुअल आई हैव कंपाइल्ड इट इनटू वन पीडीएफ। हाँ, फॉर फीमेल्स, क्योंकि द सब्जेक्ट दैट आई हैव इज फीमेल। अब फीमेल के लिए यहाँ देखो हमारा लाई स्कोर 8 था, राइट, एंड दिस इज वेयर इट इज, सो 6। अब ये वाला जो तुम्हारा ये वाला जो स्कोर है ना, ये रॉ स्कोर है, ठीक है। एंड ये वाला जो स्कोर है ये स्टैंडर्ड स्कोर है विच इज यूज फॉर कंपैरिजन, स्टैंड स्कोर। तो ये दोनों स्कोर्स डिफरेंट होते हैं एंड ये सबके लिए रॉ स्कोर अलग अलग होता है। साइकोटिसिज्म के लिए रॉ स्कोर अलग होगा, एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन के लिए अलग होगा, न्यूरोटिसिज्म के लिए अलग होगा, लाई के लिए अलग होगा, और उसी लाइन को फॉलो करना है। अब हमारा लाई स्कोर में 8 आया था तो वहाँ पे 6 आया है स्टैंड स्कोर। अभी 6 का मतलब क्या है, उसके लिए इस वाली टेबल पे आओ। यहाँ देखो 0 to 4 का मतलब है लो, 5 to 6 का मतलब है मॉडरेट, एंड 7 to 8 का 10 का मतलब है हाई। तो यहाँ पे लाई स्कोर जो आया है वो तुम्हारा है मॉडरेट रेंज में, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, हाई होता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते। ठीक है, नाउ कम टू साइकोटिसिज्म। साइकोटिसिज्म के लिए हमारा रॉ स्कोर इज 15। अब साइकोटिसिज्म वाले कॉलम में देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब उसका स्टैंड स्कोर कितना है, 10 है। उसकी साथ वाली लाइन देखते हैं। अब 10 के का मतलब क्या है, यहाँ पे तुम एक और कॉलम बना सकते हो अपनी फाइल में और स्टैंड स्कोर लिख सकते हो कि स्टैंड स्कोर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लिख दो नीचे। तो 10 स्टैंड स्कोर का मतलब है हाई, तो मतलब इसका साइकोटिसिज्म क्या है, हाई है। समझ आ रहा है कैसे करना है। और साइकोटिसिज्म अगर तुम चैप्टर 2 पढ़ के आए हो तो तुम्हें पता है साइकोटिसिज्म क्या होता है, राइट। नाउ लेट्स डू द स्कोरिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डोमेन्स आल्सो। लेंथी तो हो जाएगी बट कोई नहीं, पूरा ही समझा देते हैं ना। इसको इरेज करने दो पहले, वरना कुछ समझ नहीं आना। Oh shit, have erased the answers also. दूसरा कलर लेके कर लेना, कुछ नहीं आता। सो न्यूरोटिज्म के लिए एज आई सेड अर्लियर यू हैव टू इग्नोर द फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन इज फॉर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस देखो, थर्ड के लिए यस होना चाहिए आंसर, थर्ड के लिए आंसर यस है तो उसको 1 मार्क देंगे। देन सेवंथ के लिए यस होना चाहिए तो हम उसको 1 मार्क देंगे। देन सारे ही यस होने चाहिए इसमें, 7 12 15
19, 23, 1। तो यहाँ देखो टोटल स्कोर फर्स्ट पेज पे लिखा गया 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। न्यूरोटिसिज्म ये उल्टा, ये ध्यान रखना ठीक है, पहले यहाँ पे न्यूरोटिसिज्म है और यहाँ पे पहले एक्स्ट्रोवर्जन है, तो ऐसे गड़बड़ मत कर देना। देन हम टू क्वेश्चन नंबर 27 0, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया 31 1 34 1 38 1 38 के बाद 41 47 41 47 54 नहीं है इस पेज पे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो न्यूरोटिसिज्म में 5 स्कोर आ गया, राइट, दिस इज 5। अब लास्ट, सेकेंड लास्ट 54 1 54 हो गया 58 0 62 1 66 1 68 1 72 0 75 1 77 0 से 80 0 80 हो गया 1 2 3 4 5 5, राइट। नेक्स्ट देखो 84 1 और 9 88 0, सो यहाँ पे 1 लास्ट का। अब देखो 5 था इससे पहले वाले में, उससे पहले वाले में भी आई थिंक 5 ही था, एंड फर्स्ट में 4, so 4 5, so the total is 5 5 10 14 15, अगेन 15। तो 15 जो है ये हमारा रॉ स्कोर है, तो रॉ स्कोर के इंटरप्रिटेशन के लिए एक्स्ट्रोवर्जन में आ जाइए, उल्टी सीधी टेबलें बनी हुई है। हम न्यूरोटिसिज्म कर रहे थे ना, मैंने उल्टा कर दिया। 5 5 1 15, सो 15 न्यूरोटिसिज्म के लिए ये रहा, यहाँ पे तुम स्ट्रेंथ स्कोर 6 हो गया एंड द इंटरप्रिटेशन इज मॉडरेट, राइट। सो यहाँ से तुम टेबल बना सकते हो, एक्स्ट्रोवर्जन इज योर होमवर्क, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ये ऐसे इंटरप्रिटेशन लिखनी है। अब फाइल कैसे बनानी है, वो स्कोरिंग समझ में आ गई होगी। फाइल कैसे बनानी है तो उसके लिए मैं फाइल दिखा देती हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट। So this is how you're supposed to make the file. सबसे पहले start by writing the heading, the practical, the name of the practical. EPQ is the practical, तो वो लिखोगे किसने दिया था. Then the first heading is aim. Aim में to assess the personality of the subject, not one subject. To assess the personality of the subject by using EPQ by HJ, I think. Then second heading is basic concept, where you will explain about personality, theories of personality, क्या क्या approaches से हम personality को study करते हैं, न्यू फ्रूडियंस, जितना डिटेल में जा सकते हो, assessment, everything, types of assessment, projective techniques, ये सब explain कर दोगे, behavioral analysis. Once you're done with the basic concept, तो आता है history of the test. History of the test में हम जो EPQ test है उसके बारे में बताते हैं। तो EPQ टेस्ट के बारे में बताओगे, किसने डेवलप किया था, उसके अंदर कौन कौन से ट्रेड्स को मेजर करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, उन ट्रेड्स को तुमने एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन, साइकोटिसिज्म होता क्या है और ये चीज़ें। फिर उसका डिज़ाइन बता दिया कि डिज़ाइन मतलब इंस्ट्रक्शंस की कितने क्वेश्चन है उसमें, येस नो की फॉर्मेट में है ये वाला या दूसरा जिस भी फॉर्मेट में होगा। तो यू विल राइट कि द टेस्ट कंसिस्ट 90 क्वेश्चंस एंड द सब्जेक्ट हैज टू आंसर इन टर्म्स ऑफ येस और नो, एंड दिस विल हेल्प इन असेसिंग द पर्सनैलिटी ट्रेड्स व्हिच इंक्लूड साइकोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, उसमें क्वेश्चनर, मैनुअल, स्कोरिंग की, पेन पेंसिल, यहाँ तक हो गया। फिर आता है पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्जेक्ट और डेमोग्राफिक डिटेल्स, तो वो मेंशन कर देंगे, नेम, जेंडर, प्लेस, एक्सेट्रा, एज। देन प्रोसीजर शुरू होता है हमारा। तो प्रोसीजर में सबसे पहले रैपो फॉर्मेशन मतलब वेर यू स्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन यू एंड द सब्जेक्ट। सो यू विल राइट द सब्जेक्ट वाज कॉल्ड इन द लेबोरेटरी, ब्रीफ इंस्ट्रक्शन वाज गिवन अबाउट द टेस्ट क्वेश्चंस, दे वर इंस्ट्रक्टेड कि क्वेश्चन कोई भी सही गलत नहीं है, दे वर मेड कंफर्टेबल एक्सेट्रा। फिर इंस्ट्रक्शन दी थी, वो बताना है कि यू जस्ट हैव टू पुट राइट और रॉन्ग ऑन द गिवन कॉलम्स, जो भी आपको सही लग रहा है। फिर आता है प्रिकॉशन में कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या नहीं करना। तो रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे आसपास में, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। द सब्जेक्ट शुड बी टोल्ड दैट देयर इज नो टाइम लिमिट, बट इतने टाइम में आइडियली ये टेस्ट हो जाता है। इंस्ट्रक्शन क्लियरली सब्जेक्ट को देनी है, नो आइटम शुड बी लेफ्ट अनआंसर्ड, यू हैव टू एंश्योर बिफोर आस्किंग द सब्जेक्ट टू लीव, यू हैव टू एंश्योर दैट नो आइटम इज अनआंसर्ड। नाउ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तुमने क्या क्या किया वो लिख दिया कि टेस्ट कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया। अब उसके बाद आता है इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में तुम अपना ऑब्जर्वेशन लिखोगे अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट की, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में तुम लिखोगे कि सब्जेक्ट को कैसा लगा। तुम सब्जेक्ट से पूछोगे हाउ डिड यू लाइक द टेस्ट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, वो बताएगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, वेदर द टेस्ट वाज इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग, जो भी था। एंड एग्जैक्ट वर्बेटम, एग्जैक्ट
फॉर्म जो भी उसने स्पीच बोली है उसको एक्जैक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दोगे। देन इसके बाद एक बिहेवियरल रिपोर्ट भी आती है जिसके अंदर आता है कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया। इवन इफ द सब्जेक्ट इज सेइंग कि द टेस्ट वाज वेरी इजी, ही वाज यॉर्निंग इन बिटवीन, तो तुम वो लिखोगे कि द सब्जेक्ट वाज बोर्ड, ही वाज रशिंग थ्रू द टेस्ट। जो भी तुम्हारा ऑब्जर्वेशन था वो लिख दोगे। या काम था तो द सब्जेक्ट वाज काम, ही वाज टेकिंग द टेस्ट वेरी कामली, और ही अपीयर टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन द टेस्ट, वो लिख दिया। फिर आता है स्कोरिंग। तो स्कोरिंग कैसे करी हमने, मैनुअली करी है बाय यूजिंग द स्कोरिंग की, और जो स्कोर्स ऑब्टेन करे हैं वो रॉ स्कोर थे, उसको फिर हमने कन्वर्ट किया है किसमें, स्टेन स्कोर में, यूजिंग द टेबल नॉर्म जो हमारे पास ईपीक्यू की मैनुअल है उसकी टेबल को यूज करके। अब नीचे फिर तुमने अपना रिजल्ट बना दिया कि ये रॉ स्कोर था हर डोमेन में और उसका स्टेन स्कोर क्या था, और फिर उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन कर दिया कि 10 स्टेन स्कोर का मतलब है हाई, 7 का मतलब है मॉडरेट, और 6 का मतलब है मॉडरेट, यहाँ पे 6 का मतलब है मॉडरेट, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन लिख दी। बस इस टेबल को ना तुम और एलाबोरेटिव भी बना सकते हो कि तुमने ना रॉस को लिखा, स्टेंस को लिखा, फिर इंटरप्रिटेशन लिख दिया, पूरा ऐसे बना दिया। और लास्ट में हमारा आता है रेफरेंस। रेफरेंस में हमारे पास कि तुमने फाइल में जो भी मटेरियल लिखा है वो उठाया कहाँ से है। तो मेनली दो जगह से मटेरियल लिया होगा, एनसीईआरटी की बुक से और जो तुम्हारी रेफरेंस मैनुअल है वहाँ से। एंड लास्ट पेज में रेफरेंस जो रिस्पॉन्स शीट है उसको अटैच कर दो। सो इन द रिस्पॉन्स शीट यू जस्ट हैव टू अटैच द शीट जिसमें उसने आंसर्स मार्क किए हैं, पूरे अटैच करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कंप्लीट योर आइस एंड पर्सनालिटी इन्वेंटरी प्रैक्टिकल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसकी स्कोरिंग बट ईजिली हो जाती है। एंड टू डू दिस प्रैक्टिकल एक स्टेंसिल चाहिए होता है, सिंस द स्टेंसिल कुड नॉट बी यूज्ड हियर, इसीलिए हमने स्कोरिंग की को यूज किया, अदरवाइज विल गेट अ स्टेंसिल इन स्कूल। सो दैट्स इट।